Hello all. Welcome to Vatsale Dimahi special episode which is meant for the World Mental Health Day. So always I used to mention my partners Deepthi and Garima, and today I requested them to join me on this special occasion. So here I am with two my partner, my besties and partners in crime I can call them. So welcome Deepthi ji and welcome Garima ji. Thank you so much for your time and being with me on this special episode for Vatsale Dimahi. So I welcome you both from Vatsale Dimahi's end. And to start with, so what is this World Mental Health Day? So we started celebrating it and we tagged a day that is 10th of October from 1992. So worldwide we are celebrating it. And I myself being a practical mind coach and a counselor and an NLP expert, I am with two other specialists, NLP experts who are doing the best in this industry in whatever the way they are. दीप्ति जी, let's start with you. तो आपको क्या लगता है इस जर्नी में आके आप तो एक गुरु होके और टीचर बच्चों के साथ उसके पेरेंट्स के साथ इतना वार्तालाप करते रहते हो और इट्स लाइक you're in a noble profession. Along with it, how come your journey started with coaching and counseling? How did you start this up? So give some information about yourself and your journey in mental wellness or the counseling, NLP expert, being an author. So give some information about yourself to our viewers. Thank you so much, Taraji. And it's my honor and it's a great pleasure that I am here with you and we are talking about mental health on this special day. So, as far as my journey is concerned, by profession, I am an educator and working with children for more than 25 years and have been guiding them, guiding children as well as their parents and counseling them more specifically about their academics and career and all that, apart from their education. So, from the pandemic onwards, there is a little bit shift in my role as well as in my career because at that moment of time, everybody needs something स्पेशल फॉर देयर मेंटल हेल्थ बिकॉज वो समय ऐसा था जब इतने सारे चेंजेस हुए ऐसा पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड इतना बड़ा शिफ्ट था जिसको एक्सेप्ट करना ब्रेन्स के लिए माइंड के लिए इट वाज नॉट दैट इजी सो व्हेन दिस बिग शिफ्ट हैज बीन देयर तो आई स्टार्ट shifted myself for to a different journey and did my NLP. That initially that was for my own mental health and my own improvement. But when I learned about all these things, then I realized that this is the need of the hour. It's not for me, it's for everyone. Every child I am connected with, every child in my class, every parent I am connected with, everyone needs this knowledge. It's because first thing, the most important thing is the awareness. People don't know what actually mental health is all about. They all think that mental health is about madness, craziness. The people who are crazy or mad, they are going to the psychiatrist and psychologist and getting some treatment. But mental health is not about that. When we are looking at that, the government and WHO, they all organizations are taking steps. These kind of days are celebrated only to create awareness because awareness always brings the first step in treating any kind of illness. So people don't get into the mental illness state. So it's very important that they know what actually mental health is all about. So जब हम फिजिकल हेल्थ की बात तो बहुत लोग करते थे पर मेंटल हेल्थ से हम लोग सब डरते थे या इसको अवॉइड करते थे रहे हैं सभी जिन पेरेंट्स से मैं भी बात करती थी इवन आई नेवर थॉट कि शायद मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आई यूजुअली टैग माई सेल्फ एज एन इमोशनल पर्सन आई एम वेरी इमोशनल आई गेट अटैच्ड व्हेन आई एम interacting with my students or children or anybody else so I get very attached to them I am very emotional और मैं सिर्फ इस वर्ड के साथ अपने आप को लिंक कर लेती थी बट इट्स नॉट दैट इमोशनल कि मुझे किसी का दुख देखकर मुझे तकलीफ हो जाती है और मैं किसी का दुख नहीं देख सकती so this is not emotional emotion everybody has emotions but how we manage these emotions this is one of the main part of the mental health तो जब खुद ये सब कुछ जाना कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज देन देयर comes a change or shift in my life and as I am guiding
children for their growth. And for growth, it's very important that they should be mentally healthy. So from there onwards, I have started guiding students and parents in a different way that they become more healthier, not only physically, mentally as well. तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं से डिजायर्ड ग्रोथ, जो मेरा एक छोटा सा पेज है जिसपे मैं काम कर रही हूँ अभी, तो उसके साथ और आपके साथ तारा जी, गरिमा जी, हम सब मिलकर बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए खासकर से, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स बच्चों के साथ मदर्स रहती हैं, और एज अ वुमेन उनको मेंटली स्ट्रांग होना ही नहीं, सिर्फ स्ट्रांग होना ही नहीं, मेंटली अवेयर होना भी जरूरी है। अवेयरनेस रहेगी तभी वो स्ट्रेंथ आएगी, तभी वो अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेशंस करके अवेयरनेस क्रिएट करना सोसाइटी में। सो एज अ प्रोफेशनलिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, एंड at this age I have decided to contribute to the society in a way that I create awareness about these things as well, so that मेरे बच्चे और हमारी कम्युनिटी और हेल्दी और हैप्पी रहे, because when the people are mentally healthy they become happier as well. So True. यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और चल रही है, और आई होप कि मैं बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे लोगों तक अपनी रीच कर सकूं, और उनको बहुत स्ट्रांग मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना सकूं, so that they get their desired growth in their life. More power to you, Deepti ji. So now shifting to Garima ji. So thank you so much for joining us again. Give us some information about your journey towards counseling and mental health awareness. How you are also a tutor, educator, and you deal with teens most of the time. So आपका जर्नी इसमें कैसे आना रहा, और जो आपका एक्सपीरियंस है अभी तक एजुकेटर और ये मेंटल हेल्थ को लेके, तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। थैंक यू तारा। आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं और आप जानना चाह रही हैं कि हम मेरी जर्नी कैसी रही। तो मैं भी 25 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। जब मैं आई थी एज ए एजुकेटर, तब मुझे उतना कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं बच्चों के साथ रही तो पहले मैंने रूरल एरिया में काम किया, और वहां पे जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों के बीच में वो अलग थी। वो मेंटल इश्यूज इतने नहीं थे वहां पे, बच्चे मेंटल लेवल पे काफी हेल्दी होते थे, क्योंकि जो रूरल एनवायरनमेंट है, गांव का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। उन लोगों का एक फिक्स एरिया होता है, एक काम करने का पैटर्न होता है। तो वहां पे जो दिक्कतें थी वो रूढ़िवादिता को लेके थी, उनकी परंपराओं को लेके थी, जो कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो मैं उस पे काम करती थी, और बच्चे और पेरेंट्स के साथ मिलकर हम कैसे उसको बेहतर बच्चे की एजुकेशन के लिए काम करें, ये था। इतने मेंटल इश्यूज वहां पे मुझे दिखाई नहीं दिए। फिर मैं अर्बन एरिया में आई, और वहां पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा वास्ट एरिया होता है, उनका अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, घर रहने का जो घर है वो छोटा होता है, लेकिन उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। और इसी कंडीशन में, और जो पेरेंट्स है उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा रहता है, रोटी खाने पीने का, अपने काम का। तो उन कंडीशंस में एक बच्चा जब पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी जो जर्नी है और उस पर उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो मैं उनके चेहरों पे देखती थी। और मैंने काफी लंबे सालों से लड़कियों के साथ काम कर रही हूँ, लगभग 15 सालों से। तो वो जर्नी मुझे उनके चेहरे पे दिखाई देती थी कि आज कोई उदास है, या नहीं आई है, या चुप बैठी है। कुछ कोई बच्चा टॉकेटिव है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तब इस चीज ने, इस ऑब्जर्वेशन ने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप की कि मैं इस पर कैसे काम कर सकती हूँ, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स के साथ कोई बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। हम उसे सीखने के लिए सीखने सिखाने वाला जो एक माहौल होना चाहिए। अगर बच्चा उस स्थिति में नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन वैसी नहीं है, तो वो आसानी से उसको ग्रैस्प नहीं करेगा, और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ये था कि उसको नॉर्मल कैसे किया जाए। तो बच्चे को समझना, बच्चे को जानना, और बच्चे को समझने के लिए ना सिर्फ बच्चे के साथ काम करना, बल्कि उनके पेरेंट्स के साथ काम करना, कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे से जानी। अब बच्चा उस प्रॉब्लम को नहीं समझता है, बच्चा उससे समझ में, तो हम पूछने से, उससे बातचीत करने से तो समझ में आ जाता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बच्चा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बारे में कुछ अवेयरनेस उसको नहीं है, कुछ समझ नहीं है कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं। उसका इफेक्ट उस बच्चे पे दिखाई दे रहा है, उसकी ग्रोथ पे दिखाई दे रहा है।
तब ये था कि उनके पेरेंट्स से बुलाकर बात करना, उस पर्टिकुलर बात को समझाना, और उनकी जो कंडीशन है उन पेरेंट्स की भी हेल्प हेल्प करना कि कैसे वो इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक अलग प्रॉब्लम्स है। वही मैंने बताया कि अभी जो रोटी खाने के लिए, तो वो उस जद्दोजहद में उनकी जो पेरेंटिंग है वो छूट जाती है। तो वहां पे एज ए एजुकेटर हमारा रोल जो है, मेरा रोल है, वो बढ़ जाता है। और ये मेरा इंटरेस्ट का विषय रहा है, और इससे मुझे काफी सीखने को मिला है, और इसलिए मुझे यहाँ पे प्रेरणा मिली कि मैं मेंटल हेल्थ पर काम करूं बच्चों के साथ, और काउंसलिंग और साइकोलॉजी, इसको जानने की जिज्ञासा मेरी बढ़ती रही, और मैंने काम शुरू किया। और आज मैं एक वेदा एक्स अपना प्लेटफॉर्म है, इसके साथ काम कर रही हूँ। और वेदा एक्स का मतलब है कि चूंकि हमारी जो भारत की भूमि है, वो मेंटल अवेयरनेस मुझे लगता है जितनी भारत में रही है ना, और जितना उसमें स्थायित्व रहा है, वो कहीं और कहीं कंट्री में मुझे देखने को नहीं मिलता। तो ये जो देन है वेदास की, उपनिषद की जो लर्निंग है, लेकिन ये हमने कुछ शतकों में खो दी है, और हम भटक गए हैं। इतने आक्रमणकारी जब लोग आए और हमने उनको कॉपी और उनको फॉलो कर लिया, तो हमारी जो खुद की शक्तियां थी हम उनसे उन्हें भूल गए। और उसकी वजह से जो मेंटल इश्यूज आज हम देख रहे हैं, क्योंकि वास्ट एरिया है, पिछले 25-30 दशकों में हम देख रहे हैं कितना तेजी से परिवर्तन आया है, चेंज आया है, सोसाइटी में चेंज आया है। और आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक्सपोजर कई साथ एक साथ कई चीजों के साथ होता है, और हर बच्चा एक लर्निंग लेने के लिए आया, हर समय सीखता रहता है, जाने अनजाने। और 0 से 7 इयर्स की उम्र जो उसकी रहती है, सबसे ज्यादा लर्निंग की रहती है। और वो किस माहौल में है, किन लोगों के साथ है, किस तरह से टीचिंग ले रहा है, कौन सी डिवाइस, कौन से लोग, कैसा एनवायरनमेंट उसे टीच कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ हमने अपनी पकड़ खोई है, अपना एनवायरनमेंट खोया है। तो मेरा वेदा एक्स प्लेटफॉर्म से यही है कि वेदास और उपनिषद और एस्ट्रोलॉजी, ये इनको हम वापस से अपने जीवन में नए चीजों के साथ, जो आज हम एआई के युग में हैं उनके साथ, कंप्यूटर के युग में है, इस युग के साथ, तेजी से बढ़ते युग के साथ, अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, शिक्षण की जो पद्धतियां हैं, जिन्होंने हमें बहुत आगे रखा है हमेशा से, ये बात अलग है कि हम उनको कभी हमने शो ऑफ नहीं किया, कभी बताया नहीं, कभी हमारे अंदर डर भी नहीं रहा, है ना। तो वापस से उसके साथ जुड़े और उसके साथ काम करें, और इसी के लिए हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है। सो मोर पावर टू यू टू गरिमा जी। अभी मैं एक्चुअली ये एपिसोड करने के लिए मैं बहुत सोच रही थी। जब मैंने सर्वे का स्टैटिस्टिक्स देखी, उस समय तो इंडिया से इज लाइक 13.7% adults are suffering with mental disorders. 13.7%. तो इतना ज्यादा होने के बावजूद, are we open to discussions about this? So, Dipti ji, I want to ask you. So, when you talk about mental health of kids with the parents, so what is your experience? जब पेरेंट्स ओपन रहते हैं क्या ऐसे डिस्कशंस के लिए? जैसे आपने बता रहे थे इमोशनल को टैग करके मैं घूम रही थी, तो इट्स नॉट ओनली इमोशन आपने बताया। तो इफ इट इज नॉट ओनली इमोशन, सो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल वेलनेस अकॉर्डिंग टू यू? और आपका जो कन्वर्सेशन रहता है बच्चों से और उसके पेरेंट्स के साथ, तो इस जब भी आपको ऐसा मौका मिला, क्या मेंटल वेलनेस इसका स्पेसिफिकली एक सेशन दे इसको, और भी अवेयरनेस, आपने तो बहुत अवेयरनेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ किया है क्या? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मेंटल हेल्थ की, तो मेरे हिसाब से इसमें मेंटल हेल्थ वो है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने चैलेंजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उसको पीसफुली आराम से, बिना भगदड़ मचाए, बिना ओवर रिएक्ट किए कहीं पे भी, आराम से अपनी चीजों को अलाइन कर लेते हैं, तो हम मेंटली हेल्दी हैं। सबसे पहली चीज यही है मेंटल हेल्थ में कि सुबह उठने से लेकर हमें कोई चीज की स्ट्रेस ना हो कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, और रात को हम पीसफुली आराम से सो पा रहे हैं, हमें नींद आ रही है, देन वी आर मेंटली हेल्दी। सेकेंड थिंग आती है समझने के लिए कि हम जो है हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ अच्छे से हम बिहेव कर सकते हैं, अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से किसी के साथ डेवलप कर सकते हैं। हमारे क्लोज रिलेशन से लेकर हमारा सिंगल, चाहे हम किसी एक व्यक्ति से वन टाइम मिल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मिले हैं या हम रोड पे मिल रहे हैं,
अगर हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं तो वी आर मेंटली हेल्दी। और अगर वो नहीं कर पाते हैं, रोड रेज हो रहा है कि किसी ने मेरी गाड़ी के पीछे से 2 बार हॉर्न बजा दिया, या जो लोग ट्रैफिक में खड़े हैं दे नो कि वो ट्रैफिक को क्रॉस नहीं कर सकते, आगे ब्लॉक है, स्टिल दे आर हॉन्किंग दी हॉर्न्स। Awesome. तो ऐसे समय में हम यही कह सकते हैं कि दे आर नॉट दैट मच मेंटली हेल्दी। तो दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन सबको जानना समझना और अपनी ग्रोथ के लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर पाना, दिस ऑल्सो कम्स इन मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मेरे अंदर क्या खासियत है, या मेरे पास जो है, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब उसे यही नहीं पता तो वो मेंटली हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली इल नहीं है लेकिन दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अपने लिए ही नहीं, अगर हम मेंटली हेल्दी हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो हम अपनी सोसाइटी के लिए भी जो हमारे पास है उससे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो भी मेंटल हेल्थ में ही आता है। सो आई कैन समराइज इट लाइक कि मेंटली हेल्दी अगर हम बात करते हैं किसी पर्सन के लिए, तो वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी से लेकर, अपने रिलेशनशिप से लेकर, अपनी पर्सनल ग्रोथ से लेकर, अपनी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए अगर वो काम कर सकता है, वो कहीं भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है और कर रहा है, तो वो मेंटल हेल्थ के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये सब चीजें कर पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो रहा है लोगों के लिए। वो अपनी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में ही स्ट्रेस को लेकर घूम रहे हैं। एक छोटा सा वर्ड डाल दिया गया है स्ट्रेस, लेकिन वो इतना बड़ा बन गया है कि हर व्यक्ति शायद चाहे अनचाहे इसके साथ घिरा हुआ है कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। और जब ये स्ट्रेस शब्द आ जाता है ना, तो मेंटल हेल्थ तो बिगड़ ही जाती है। तो हम नहीं कह सकते कि जिसने स्ट्रेस शब्द का यूज दिन में एक बार भी कर लिया वो मेंटली हेल्दी है। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उसकी प्रॉब्लम में है। सो वेरी सिंपली कि इन चीजों को अच्छे से मैनेज करना है, मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आता है। अब मैं जहाँ आप बात कर रही हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ छोटे बच्चों के साथ, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट के में जो बच्चे आते हैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। अगर उनके बारे में बात करें या उनके पेरेंट्स से बात करें तो उनके लिए मेंटल हेल्थ तो एक ऐसा डिफरेंट वर्ड ही है कि ये सब क्या करना है, दिन भर के हमारा दाल रोटी पूरी हो जाए और हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है यही बहुत है। तो यहीं तक सीमित है, मेंटल हेल्थ उनके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं। पर वास्तव में जरूरत हर एक बच्चे को है। जब हम कक्षा में बैठे हुए बच्चों को देखते हैं, छोटे से बच्चे को भी देखती हूँ, तो उसको भी दुख और सुख का एहसास होता है। वो घर से डांट खाकर जब आता है तो उसका मन नहीं लग सकता कि क्लास में टीचर क्या करा रही है। या भूखे पेट आता है जब सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो उसके लिए पहले खाना है, उसके बाद ही, जब तक उसकी शारीरिक भूख पूरी नहीं होगी तो मानसिक भूख के लिए वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें, इन सारे चैलेंजेस में उनके लिए उनका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि बच्चों को डांट का असर नहीं होता, पर डांट कर देखिए बच्चों को, एक बार उनका हाल जान कर देखिए कि जो बच्चा डांट खा के आया है घर से सुबह उठने से लेकर स्कूल पहुंचने तक, पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स के लिए तो है कि बच्चा स्कूल जाएगा, शायद 2 अक्षर पढ़ लेगा तो वो अपना जीवन संवारेगा, और वो स्कूल जाएगा तो वो अपने काम पर जा पाएंगे, उनके लिए पैसा कमा कर आ पाएंगे। तो ऐसी जद्दोजहद में जब पेरेंट्स और बच्चों से हम बात करते हैं, तो दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग काउंसलिंग भी। तो दिन में कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे अनचाहे काउंसलिंग कर ही रहे हैं, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा उनका। और जब Okay. सीख लिया है, अब प्रॉपर तरीके से जब इन चीजों को जाना है, पहले हम अनजाने में करते थे पर अब हम बहुत तरीके से करते हैं। मैं अपने आप को ही देखती हूँ कि हर छोटी बड़ी एक्टिविटी में कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीजों को इन्वॉल्व करूँ। सबसे पहला स्टेप वही रहता है कि जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस है, जब भी पेरेंट्स से बात करती हूँ, पेरेंट्स से मुलाकात होती है, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनपुट उनको देती हूँ ताकि वो समझ पाए कि इमोशंस क्या है उनके, डे टू डे लाइफ में वो कैसे स्ट्रेस को रिलैक्स हो सकें, बच्चों के साथ कैसे वो अपने आप को मैनेज कर सकें, बच्चों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी के थ्रू, छोटी छोटी एक्टिविटीज में अवेयरनेस क्रिएट जरूर करती हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एक्सेप्टेंस का।
जो प्रोसेस में मैं लेती हूँ, क्योंकि अवेयरनेस हो भी गई, आपको पता है कि आपके साथ कोई चैलेंज है, पर उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अच्छा है तो उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, और खराब है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। तो सेकंड स्टेप एक्सेप्टेंस का है। तो अगर कोई बच्चा उदास है, दुखी है, तो बातों बातों में उसे एक्सेप्ट करा देती हूँ कि हाँ, आज मन दुखी है, आज डांट पड़ी है तो मन दुखी है। उन्हें ये भी पता चलता है कि डांट पड़ी है इसलिए मन दुखी है। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद ही आता है कि इसको ठीक कैसे करें। तो तीसरा Correct. स्टेप होता है उसको बदलाव करना। तो बदलाव करने के छोटे छोटे तरीके बताए जाते हैं, कैसे बदला जाए, कैसे अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अलाइन किया जाए, कैसे अपनी ग्रोथ के लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया जाए। तो बहुत सारी चीजें क्लासरूम में ही कोशिश की जाती है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं कि स्पेशल पेड क्लासेस में कहीं नहीं आ सकते वो बच्चे, और उनके लिए शायद जो उनके माता पिता नहीं कर सकते वो भी करना है। तो पूरी जिम्मेवारी से कोशिश करती हूँ कि उनको ये सब कराते हुए, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि उनको दिन भर में कई जगह जहां वो रिएक्ट करते हैं वहां से चेंज करके रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि हम अपने रिएक्शन छोड़ के रिस्पॉन्ड करना शुरू करें, तो हमारी मेंटल हेल्थ अपने आप स्ट्रांग होती जाती है। तो Correct. बिना कहे, बिना कोई टैग्स दिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 10 साल तक की उम्र में बच्चों को शायद इतना नहीं पता होता कि हम इन बड़े बड़े शब्दों के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि जब मेंटल वर्ड आ जाता है ना, तो एक ही दिमाग में चलता है कि शायद दिमाग खराब है, कमजोर है। दिमाग कमजोर नहीं है, लेकिन हमें उस माइंड को स्ट्रांग करना है। उसको जितना हम चलाएंगे, जितना यूज करेंगे, तो मेडिटेशन है, माइंड गेम्स है, ब्रेन जिम है, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी कराते कराते हम अपनी डेली रूटीन में ही बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं कि बच्चे मेंटली स्ट्रांग रहें, और पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह, जब भी उनकी टीम्स होती हैं या कुछ ऐसा सेशन लेकर, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उनको छोटी छोटी टिप्स देती रहूं, ताकि वो भी अवेयर रहें। करेक्ट, आपने सही बता दिया कि छोटे छोटे एक्टिविटीज हमारी रूटीन में ही उसको इनकलकेट करने से इतना ज्यादा बर्डन नहीं बनता है हमारे लिए, और हमारा प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। जनरली हम बोलते हैं मेंटल वेलनेस इज इक्वल टू फिजिकल वेलनेस, और फिजिकल वेलनेस इज इक्वल टू मेंटल वेलनेस। मैं जी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे दीप्ति जी बोल रहे हैं हर दिन हमारा देख मतलब हर एक एक्टिविटी और हमारा रूटीन इतना आसान है, मतलब हमारा मेंटल हेल्थ ठीक ठाक है। तो जैसे आप भी आपके टीन्स के बारे में बोल रहे थे, तो वो चुप्पी है, तो आपके बच्चों से कैसे हैंडल करते हो? तो आपको पता चल गया, so they are in some suffering, so probably emotionally or something else where they are not expressing. So how would you counsel them and bring them back to the normal state? So what is your step that you take care of? जी तारा जी, अभी दीप्ति जी ने बताया तो बिल्कुल सही बताया। और मुझे लगता है कम्युनिकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। हम सब कम्युनिकेट करते हैं, वर्ड्स को समझते हैं, सेंटेंस को समझते हैं, लेकिन उस हर वर्ड की हर व्यक्ति के लिए एक अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, उसका अपना एक परसेप्शन हो सकता है। और कई बार ये चीज जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने कोई एक बात आपसे कही, आपने उसका क्या अर्थ समझा, और मैंने जो कहा उसका क्या अर्थ है। अगर हम दोनों का सेम मीनिंग नहीं है तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप निर्मित होगा और रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है, और आप जो कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर कंफ्लिक्ट डेवलप होते हैं, चीजें मैनेज नहीं होती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैं कम्युनिकेट करती हूँ बच्चों से, और उससे मुझे उसकी समझ के बारे में समझ में आता है कि वो कहाँ अपनी प्रॉब्लम में स्टक है, कहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। हमारा जो दिमाग है वो लर्निंग लेता है, अपने आसपास से सीखता है कि कैसे किसी समस्या से उसको निकलना है। तो ये समझ अगर डेवलप हो गई है और वो निकलना सीख गया है तो ठीक है। पर कई कई बार वो एक ही लूप में फंस जाता है। वो किसी किसी कारण से उसने वो लूप को अडॉप्ट कर लिया, घर में देख लिया या पेरेंट्स के साथ देख लिया, या बार बार देखने को आया, या कोई ट्रॉमा उसके साथ हो गया। तो उस लूप, वही उसका जो माइंड है उसी लूप में रह के काम करता है, और उस लूप में रह के काम करने से उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से वो निकल नहीं पाता, और उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में बार बार रीजनरेट कर लेता है, बार बार क्रिएट कर लेता है, और वही उसकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमें कम्युनिकेशन करके, उस बच्चे से बातचीत करके मैं निकालती हूँ कि उसकी कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ वो अटका हुआ है। और वो ये मान लेता है कि ये एंड है, मतलब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब वो उसका कोई सॉल्यूशन उसको दिखाई नहीं देता, तो उसका पूरा
असर उसकी मेंटल स्टेट पर और फिजिकल स्टेट पर दिखाई देता है कि उसे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करे। अच्छा, उसको उसको ये भी नहीं पता है कि मैं इस बात को किसी से शेयर कर सकता हूँ, कोई सही व्यक्ति है और मेरी बात शेयर करने से मेरी बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं ये भी अवेयरनेस अपनी क्लासेस में देती हूँ कि आपको शेयर जरूर करना है, किसी भी प्रॉब्लम, अपनी किसी भी एरिया में हो, अपनी ग्रोथ को लेकर हो, अपनी स्टडी को लेकर हो, अपने रिलेशंस को लेकर हो, किसी मनी या कोई और एनी कोई प्रॉब्लम हो अपने लाइफ में, तो वो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो रास्ता नहीं निकलेगा। और फिर उनको मैं कोई जो उनकी बातचीत से समझ में आता है तो उससे उनको रीजन देना पड़ता है कि भाई क्या रीजन है, उसको डिफाइन करिए, उसको खोल के रख दीजिए कि प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई, उसका रीजन क्या है। तो कहीं फिर उसको समझ में आता है कि वो रीजन नहीं है। कई बार वो उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, उसको अपने आप को रीजन समझने लगता है, या उस अपनी किस्मत समझने लगता है, या कुछ समझ ही नहीं पाता है, और उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, या मैं से कैसे निकलूं। तो वहां पे उससे बातचीत करके उसकी समझ के और उसको रास्ता बताया जाता है कि वो किस तरह से उससे निकल सकता है। तो ये एक मैं आसान सा काम करती हूँ। और छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, एक्टिविटीज हैं जो बच्चों के साथ की जाती हैं, तो जिससे उनका जो दिमाग है वो खुलता है। जैसे हम कहते हैं ना, पैराशूट और जो छाता है वो जब तक खुलते नहीं है तो काम नहीं करते, तो इसी तरह से हमारा जो मेंटल अवेयरनेस है, जो माइंड अगर खुलता नहीं है तो वो काम नहीं करता है। तो हम एक्टिविटीज के थ्रू अपनी क्लासेस में, स्कूल में दिमाग को खोलने का काम करते हैं, ताकि बच्चा जो है अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आसानी से डील करना है वो सीख सके। तो बहुत ये बढ़िया। मेरा होता है। बहुत मैं भी किसी से बातें करती हूँ तो मतलब उन लोगों को यही इन्फॉर्म करती हूँ कि यू आर सपोज टू शेयर, only when you share you will get a solution. So if you are keeping it for yourself, then probably that is the end, because you are the one who is deciding that end. जब बातें करते हैं तो अलग अलग रास्ते निकल के आते हैं। तो इसीलिए हमारे जिंदगी में फ्रेंड्स को जुड़ के रखना और उन लोगों के साथ हमारे टाइम बिताना बहुत जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ डे पे ये वाला हम तो स्ट्रेस करना ही पड़ेगा हम लोगों को कि यू नीड टू क्रिएट दैट फ्रेंडशिप और द रिलेशनशिप वेयर यू कैन शेयर विदाउट एनी हेजिटेशन। तो दीप्ति जी, आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। आप तो बहुत सारे काउंसलिंग लिए हैं, तो इन सारे केसेस में आपको ऐसा लगा कि अरे इसको तो और भी करना है, बट ये तो बेचारा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या बेचारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो ताकि सबको ये समझ में आ जाए कि क्या होता है जनरली। एक मेंटल काउंसलिंग के लिए आपके पास आया है तो केसेस कैसे रह सकता है। आपने तो सिंपल बातों में बता दिया कि if we are not able to do the daily activities in a row and for everything we are finding it stress, matlab we are finding it difficult, then it is stressful situation and we need help. So is there any case that you can just give out the gist where you felt it was tough for you to counsel that client? Yes, तारा जी, when we talk about counseling, हम अक्सर ये कहते हैं कि हम काउंसलिंग कर सकते हैं उस व्यक्ति की, या हम उस व्यक्ति में बदलाव ला सकते हैं जब व्यक्ति खुद तैयार होता है, जब वो Correct. खुद मेंटली तैयार हो। कुछ हद तक भी 1% 2% भी हो, 100% की बात नहीं हम करते हैं, 1-2% भी एटलीस्ट वो रेडी है, वो एग्री करता है इस बात से कि यस दिस इज नॉट द राइट थिंग और मुझे इसे बदलना है, तो ही काउंसलर जो है काम कर सकते हैं उसके साथ और कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जहां मुझे लगता है कि नहीं ठीक हुआ, तो ऐसा ही केस है कि जहां बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, बच्चा इशू फेस कर रहा है, लेकिन वो तैयार नहीं है उसे बदलने के लिए, या तैयार नहीं है किसी प्रकार की काउंसलिंग लेने के लिए। उसे नहीं लगता कि काउंसलिंग उसको उसमें कोई बदलाव ला सकती है। दूसरी चीज, जब हम ऐसे बच्चों के साथ, खासकर से बच्चों के साथ देखते हैं ना, तो कारण जो बनते हैं ना, बहुत हद तक कारण पेरेंट्स हो जाते हैं। Yeah. बड़े अफसोस की बात है, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी तरीके से भी कोई दुख या कष्ट झेले, कोई तकलीफ में आए, लेकिन जाने अनजाने कुछ चीजें पता ना होने के कारण हम पेरेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर हमारा होता है, भले ही हमारे अपने चैलेंजेस हों उसमें। ऐसा भी होता है कि हम अपने स्ट्रेस में हैं, लेकिन हम वो स्ट्रेस बच्चों पे निकाल देते हैं, या हम हमारी अपनी जो
जर्नी है एज अ चाइल्ड, हम कैसे ग्रूम अप हुए हैं, हमारा एक अलग सिनेरियो था बिल्कुल ऑल टुगेदर। अब टाइम जैसे चेंज होता है तो चेंजेस हैं, लेकिन हम पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग नई जनरेशन को बड़ा करना चाह रहे हैं। तो वो जो गैप्स हैं उसके कारण कुछ ना कुछ ऐसा पेरेंट्स की तरफ से होता है जिसे बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वहां से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और बच्चों के लिए ये एक्सेप्ट कर लेना मुश्किल हो जाता है कि ये मेरे पेरेंट्स के कारण हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि काउंसलर मुझे किसी तरीके से मेरी हीलिंग करेगा, मुझे इम्प्रूव करेगा। तो वो इस बात को पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे पेरेंट्स इस चीज का कारण है, और फिर उनके लिए ये भी कि मैं इस चीज की काउंसलिंग क्यों लूं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो बड़ा सैडनेस फील होती है, थोड़ा सा अपने आप को भी बुरा लगता है कि कैसे हम इस चीज को इम्प्रूव करें। पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है, पर पेरेंट्स भी कई बार गिल्ट में आ जाते हैं, बजाय कि वो एक प्रॉब्लम को दूर करने के। उनको लगता है कि अगर मेरी वजह से है तो वो गिल्ट में चले जाते हैं, तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो Correct. बहुत जरूरी है कि हम बहुत रूट लेवल से धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव करें। पेरेंटिंग के लिए गाइडेंस बहुत जगह अवेलेबल है अब तो। अगर हम टेक्नोलॉजी को भी देखें तो जरूरी है कि हम समय के साथ साथ जो चीजें हैं उसको सीखें समझें, और नई जनरेशन जो है हम बेटर बना सकें। तो इसी पे काम करना जरूरी है। बहुत बेहतरीन। तो पेरेंट्स बन जाते हैं उसका रूट। जो जब आपको ऐसा ओकेशन मिला होगा कई बार, like when you express your helplessness and say that you are the root cause, so what is parents reaction for it? यस, और यही चीज मैंने अपनी जो बुक में, पेरेंटिंग की बुक में, मैंने इस कंसेप्ट को सेम पेज थ्योरी का नाम दिया है। तो सेम पेज इज समथिंग लाइक कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक ही लेवल पे आना पड़ेगा, सेम पेज पे आना पड़ेगा जो बच्चे चाहते हैं। टीनेज की जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो उसका रूट कॉज ही यही है कि पेरेंट्स यहाँ पर हैं और बच्चा यहाँ पर है। तो कभी भी वो मैच नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं उठेंगे। पहले पेरेंट्स को थोड़ा सा उनके लेवल पे आना पड़ेगा, उनकी जनरेशन्स को समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सेम पेज इज। सो व्हेन दे बोथ Correct. कम ऑन द सेम पेज, देन द चेंज और इम्प्रूवमेंट कम। तो मैंने अपनी True. लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट किया है, और तभी मैंने इसे अपनी बुक में भी लिखा है, और इसका रिजल्ट 100% है, ये तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। सेम Yeah. पेज ऑलवेज वर्क्स। True. I also believe, and that's what my book also talks about. I reflect you. Generally, बच्चे parents का एक छोटा सा रूप बन जाते हैं. So they don't know parents if until unless they observe what the kids are doing is what they are actually doing it. So many a times there are so many counselors like us who are working day in day out to just create this kind of awareness to every individual, not only the parents, but as we are talking about kids, I think this parents have to understand that they are inhibiting the characteristics of parents itself, and they are exhibiting the same actions to the world. So they are taking it, input is from parents, and output is in the form of their physical appearance. So this is what even I had written in I reflect you. So गरिमा जी, तो अब तक हमने सिविलियंस की बातें कर दी, तो मुझे पता है कि आपने जवानों के साथ आर्मी में जाके एक मेंटल वेलनेस वर्कशॉप करके आए हैं। तो आपको इसमें अंतर दिखता है क्या? The normal civilization that we are residing inside the country, and the people who are day in day out working to safeguard the country. So do you find any difference in it or in their mental state, or do you think like mind is always same wherever it is? So what is your take on that? जी तारा जी, हमने वेलनेस कैंप जो आर्मी का किया है, आप भी हमारे साथ थे, तो उसमें देखा कि जो सिनेरियो है, जो नॉर्मल सिविलियन है उनका जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, और जो आर्मी पीपल है उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। वो ऑलवेज 24 आवर ड्यूटी पर है, एक अलर्टनेस मोड में है, और एक कमांड फाइंडिंग मोड में है कि वो कमांड पे चलते हैं। Okay. तो और पूरा उनका फिजिकल अलर्टनेस पूरे टाइम रहती है, तैयार रहते हैं। तो निश्चित है कि वो जिस उनका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा टिपिकल एनवायरनमेंट है जिसमें वो सरवाइव कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल सिविलियन से उनका जो मेंटल स्टेट है वो काफी अलग है, कि वो उस परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन वो एक तरफ घर से भी जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। तो जब कोई फैमिली से कोई प्रॉब्लम आती है,
अब फैमिली वही रह गई है और उनका डेवलपमेंट एक अलग हो गया है, उन्होंने चीजों को अडॉप्ट किया है, अंडरस्टैंड किया है, लेकिन फैमिली ने वो चीजें नहीं समझी है, नहीं देखी। तो एक प्रॉब्लम फैमिली से उठकर जब आती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो विचलन आता है, प्रॉब्लम आती है, मेंटल हेल्थ पे इशू आता है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, एंगर आता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और हमारे जितने भी इमोशन से भावनाएं हैं, अगर वो सभी हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है कि हम इंसान हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सभी का होना जरूरी है। तो ये मुझे वहां पे जानने को मिला, देखने को मिला कि वो लोग अपनी ड्यूटीज तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई बार उनके कलीग्स के साथ हो सकती हैं, उनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। मैंने देखा कि चाइल्डहुड इश्यूज भी के लोग कैरी कर रहे हुए होते हैं, और उसकी वजह से भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, स्ट्रेस और एंगर से रिलेटेड। तो मुझे वहां पे एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, ये प्रॉब्लम इश्यूज थे। और उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस था कि कोई इस पे भी बात करेगा क्या। मतलब उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था कि कभी इन चीजों पे भी, वेलनेस पे, मेंटल वेलनेस पर कोई बात करेगा या कोई हमारी सुनेगा। तो आधी बात तो उनकी बात सुनकर, उन्हें समझकर हो गया काम। और दूसरा, जो उनके इश्यूज थे उनको समझने को मिला, और उनको कुछ टेक्निक्स हम लोगों ने अप्लाई की हम्म, सेशंस में। ग्रुप में भी कुछ टेक्निक्स बताई गई, मेडिटेशन के सेशंस हुए, और उनको रिलैक्स करने के सेशंस हुए, और उसमें आधा काम हो गया। और कुछ जो विशेष जो केस थे, स्पेशल केस थे, तो हमें 1-to-1 करने को मिले। और मुझे खुशी है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है इसके लिए अवेयर थी, और उन्होंने प्रोग्राम किया, तो बहुत बड़ा हेल्पफुल रहा। तो हमने उन 1-to-1 केसेस से जाना, उनके इश्यूज को जाना, और उन्हें ठीक करने का, उनके साथ उन्हें हेल्प करने का काम किया। तो बड़ा ही आनंददायी एक्सपीरियंस रहा वो। बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट अगेन। तो कितने बार भी हम वहां जाके जो हमारे लिए इतना काम करते हैं, छोटा सा एक स्क्विरल जैसे हेल्प हम कर सकते हैं हमारे प्रोफेशन के थ्रू, मतलब वो बढ़िया बात था। तो थैंक्स टू गॉड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय टीममेट ओवर देयर। So it was a wonderful talk with you, Deepti ji and Garima ji. So I think the video will go on for a long time if we are talking on and on. I know that there are so many topics that we would like to cover. And if you both give me some time, I would request your time for more episodes like this so that we can take small topics and discuss on it. So what is your take on that? So would you be able to give me that time with your busy schedules? Yes, always. There is Thank no you. way we can say no to this. We are Thank you here. so much. हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है तारा जी, आपके साथ Okay. हमेशा काम करने के लिए। Okay. Thank you so much. So before we close this episode, Deepti ji, आपका closing message for the viewers. From my side, I would say that कि mental health, physical health, emotional health is very important, और सभी लोग इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझें और जाने, इन सब चीजों के बारे में जाने। जहां से भी सोर्स मिलता है इसको जाने, समझें, और जो भी तरीके हैं अपनाएं, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि अगर हम स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कैसे भी, दोनों तरीके से हम स्वस्थ हैं, तभी जीवन का आनंद है। और जिसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कैसा भी स्वास्थ्य खराब हो, तो जीवन में कोई आनंद नहीं, जीवन नीरस हो जाता है। तो अपने स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान दें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। Thank you so much, Deepti ji. Garima ji, last closing message for all our viewers. बिल्कुल सही दीपी जी ने बताया। और यूनिवर्स जो है हमें बहुत सारी कहना चाहिए आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके पास इतनी एनर्जीज भरी हुई हैं कि वो हमेशा हम पे लुटाने के लिए तैयार है, बस हमें एक अवेयरनेस की जरूरत है। तो मेरी जो टैगलाइन है, वसुधैव कुटुंबकम, मेरा सोचना है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा यूनिवर्स है। और जितने भी क्रिएचर हमारे यूनिवर्स पर हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, वो सब मिलकर हमको बनाते हैं। तो उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना होगा, और सबको साथ में लेकर हम एक खूबसूरत अपना स्वयं का जीवन, अपने परिवार का जीवन, और अपनी कंट्री का, और अपने यूनिवर्स का एक खूबसूरत जीवन बनाने की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा मैसेज है आपके Thank माध्यम से। तो थैंक यू thank तारा you जी, so आपने much. मुझे ये अवसर दिया। Thank you so much, Garima ji. Thank you so much, Deepti ji. So I will be giving
their phone numbers in below so that you can contact them at any point of time. So thank you all for giving this time, and we will soon meet you with another new episode. And signing off.